subscribe my channel and press on bell button so you will get notification of every new video. Hello and welcome you all. In this video, we are going to talk about asexual reproduction in lower organisms. So let us start. Asexual reproduction is a type of reproduction in which a single individual is involved and a single parent is capable of producing offsprings with or without the involvement of gamete formation. Okay, यानी एक ही parent, single parent इसमें involve होता है, वही offsprings produce कर सकता है. Then there is no formation of gametes. Normally asexual reproduction में gamete formation नहीं होता है. Okay, but in some cases if the gamete in rare cases if the gamete are forms, they will never fuse. अगर gamete form भी हो गए तो वो fuse कभी नहीं होंगे. One of the example is of a हनी बी की जिनमें एक सिंगल गैमेट से ही क्या हो जाता है, तो ड्रोन दैट इज अ मेल ऑफ कॉलोनी आर डेवलप. ओके, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बट दैट इज नॉट द fusion of gamete. Okay, so that is the example. Then offsprings in the asexual reproduction are morphologically and genetically similar called clones. तो exactly similar होते हैं जो भी offsprings होते हैं produced by the asexual reproduction. Now there are different kind of organism which reproduce asexually and they show the different ways of asexual reproduction. So let us see the different ways of asexual reproduction. One is fragmentation. In the multicellular organisms, for example, like algae, here the example is of a Spirogyra. It has a filamentous body, and this filamentous body can break into fragments due to one or more reasons की वजह से अगर body उसकी fragment हो जाती है, break down हो जाती है बीच बीच में, तो from that every fragment the single individual of Spirogyra develops और grows. तो ये देखिए तीन fragment हो गई ये वाली Spirogyra की body के, और ये तीनों fragment से एक इंडिविजुअल स्पायरोगायरा जो है वो डेवलप होता है या ग्रो होता है. ओके, वन अनदर एग्जांपल इज ऑफ अ फ्रैगमेंटेशन इज अ प्लानारिया. देखिए यहाँ पे एग्जाम, दिस इज द बॉडी ऑफ प्लानारिया. उसके तीन फ्रैगमेंट्स हो गए बॉडी के. देन फ्रॉम दीज थ्री फ्रैगमेंट से तीन अलग अलग जो प्लानारिया है वो डेवलप हो गए या ग्रो हो गए. सो इन दिस वे प्लानारिया आल्सो शोज द फ्रैगमेंटेशन. नाउ द सेकंड मेथड ऑफ asexual reproduction, that is a binary fission. Bi means two. Okay, so this type of asexual reproduction is takes place in protists and monerans. यानी बैक्टीरिया में ये होता है और प्रोटिस्ट में होता है, जिसमें क्या होता है कि पैरेंट से जो है डिवाइड बाय माइटोसिस. पैरेंट सेल का क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है इनटू टू सेल्स एंड गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. तो ये किस में होता है, यूनिसेल्युलर्स में ये बाइनरी फ्यूजन होता है कि जिसमें सिंगल या सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है. अब देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज द अमीबा, सिंगल सेल्ड एनिमल, पैरेंट अमीबा है, उसका न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो जाता है. देन फर्दर जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है उसमें ग्रू फॉर्म हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रू, and then that is a karyokinesis. Then nucleus का division हो जाता है into two and nuclei, that is karyokinesis which is followed by cytokinesis. उसके बाद cytoplasm का भी division हो जाता है and in this way the two daughter cells are formed. Okay, so यहाँ पे जो daughter two cells है that means two amoeba. Okay, this is unicellular animal है. इसमें क्या होता है, it means cell division itself is a mode of reproduction. यानी amoeba की जो पैरेंट सेल एक सिंगल सेल जो होती है वही माइटोटिकली डिवाइड होती है, और डिवाइड होने के बाद जो दो सेल्स फॉर्म होते हैं, दैट टू सेल्स आर नथिंग बट द टू सेपरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अमीबा और टू सेपरेट अमीबा. ओके, नाउ तो काफी जो मेनी सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स है दे ये बाइनरी फ्यूजन से क्या हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं एंड टू हॉल्स उसमें ये सिंगल सेल के हो जाते हैं एंड दैट टू हॉल्स रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट. सो अमीबा है, पैरामीशियम है, दिस asexually they reproduce by binary fission. Now there are some more methods of asexual reproduction, that is the multiple fission. यानी जो बाइनरी फिजन है उसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके दो ऑर्गेनिज्म उससे फॉर्म होते हैं. इन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से मेनी ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं. पर्टिकुलरली इन अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस में
ये होता है। और एग्जाम्पल इज अगेन द अमीबा। सो इट दिस अमीबा विदड्रॉ इट्स सूडोपोडिया। ये अमीबा क्या करता है, अपने जो सूडोपोडिया है इनको क्या कर लेता है, विदड्रॉ यानी अंदर ले लेता है। देन उसके बाद द बॉडी ऑफ अमीबा यानी दैट सिंगल सेल ऑफ अमीबा secretes a three-layered hard covering of cyst. Okay, so that single cell secretes a substance which cover the body of that amoeba अराउंड इटसेल्फ। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट इनसाइड दैट अमीबा और उससे उसके बाहर से जो कवरिंग होता है, दैट इज सिस्ट इज फॉर्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड एज इंसिस्टेशन, उसको कहा जाता है। नाउ व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न्स, जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती है तो एनसिस्टेड जो अमीबा था, ओके तो इट इज डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन्स। इनसाइड वो सिस्ट के अंदर क्या हो जाता है, अमीबा जो है वो मल्टीपल टाइम्स उसका फिजन हो जाता है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मिनी न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है इनसाइड एंड इस तरह से मल्टीपल फिजन हो जाता है। तो इनसाइड सिस्ट के इनसाइड सुडोपोडियोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, मेनी माइन्यूट सुडोपोडियोस्पोर्स या फिर माइन्यूट अमीबा कहेंगे, वो फॉर्म हो जाते हैं। देन एज द सिस्ट वॉल बस्ट, जैसे ही सिस्ट वॉल क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द सिस्ट, उसके अंदर ये न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। then further they become the pseudopodiospores. okay, and जब वो pseudopodiospores उसके अंदर है और जब cyst ब्रेक हो जाता है, बस्ट हो जाता है, तो ये जो माइन्यूट अमीबास है वो वहां से बाहर आ जाते हैं, and they becomes the young individual many amoebas, जो काफी सारे अमीबास जो है वहां पे फॉर्म हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से नाउ दिस ये जो फिनोमिनॉन है कि जो सिस्ट बस्ट होने के बाद जो स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम to grow up into many amoeba. This phenomenon is called as a sporulation. One another example of multiple fission is of a plasmodium. Okay, तो जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, सो वो भी आरबीसी ह्यूमन के या मैन के आरबीसीज में क्या हो जाता है, इसी तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है बाय मल्टीपल फिजन्स। ओके, सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ this plasmodium. okay, cryptomerozoites, schizoid nuclei and merozoites. तो इस through these stages ये प्लाज्मोडियम क्या हो जाता है, asexually reproduce होता है in the red blood cells of a man. Now one another method of asexual reproduction, that is a budding in yeast. okay, budding and ये yeast में होता है। so देखिए here in yeast the division is unequal. division कैसे होता है, unequal होता है, यानी yeast के सेल डिवाइड होके जो भी दो सेल्स फॉर्म होते हैं, that cells are unequal. okay, then इट इज फर्स्ट इनिशियली जो भी स्मॉल बर्ड फॉर्मेशन शुरू होता है, देखिए ये भी एक पेरेंट सेल है, उसके यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड डेवलप होना शुरू हो जाती है। देन फर्दर इवेंचुअली दिस बर्ड ग्रोज, ये बर्ड ग्रो होती है। देन न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया और कुछ न्यूक्लियस का डिवीजन भी अनइक्वल है, साइटोप्लाज्म का भी अनइक्वल ही है। देन ये जो बर्ड है इट इज फर्दर ग्रोज एंड बिकम्स अ डॉटर सेल, तो ये ग्रो हो जाती है और डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है। एंड देन इस तरह से कई जो सेल्स है वो फॉर्म होते हैं थ्रू दिस बडिंग प्रोसेस एंड चेन ऑफ सेल्स इज फॉर्म। ओके, सो दिस इज द बडिंग इन अ yeast. Now next is the spore formation. In algae like a Chlamydomonas, asexual reproduction occur. तो okay, Chlamydomonas में होता है, they are the zoospores are produced. ये process में क्या होता है, in spore formation zoospores are produced. They are the they are the flagellated. See यहाँ पे उनको आपको flagella दिख रहे हैं जिसकी वजह से वो move करते हैं, यानी locomote करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. Then these zoospore which can grow independently into a new individual. तो ये पेरेंट्स की जो क्लामाइडोमोनास है उसमें जूस्पोरेंजियम में ये यहाँ पे ये काफी सारे क्या हो गए, जूस्पोर्स फॉर्म हो गए, और ये जूस्पोर जब यहाँ से रिलीज किए जाएंगे, ईच जूस्पोर जो है वो एज अ सिंगल इंडिविजुअल वहां पे ग्रो करता है। ओके, नेक्स्ट द कोनिडिया। ओके, सो दीज आर फाउंड इन फंगाई। तो फंजाई में क्या होता है, ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, यू कैन सी इन द पेनिसिलियम। सो पेनिसिलियम में ये इस तरह से कोनिडिया फॉर्म होते हैं, दे आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और ये कोनिडिया से जो नेक्स्ट न्यू इंडिविजुअल है फंगाई की बॉडी जो है वो डेवलप होती है। नाउ
there are some other common asexual structures which also carry out the asexual reproduction, जैसे कि birds. Okay, तो ये birds में क्या होता है particularly during the favorable conditions, जब conditions favorable होती है, then at that time coelenterate like hydra and corals and in some colonial ascidians, तो उनमें क्या होता है बर्ड्स डेवलप होते हैं. सो बेसल जो पर्टिकुलरली जो हाइड्रा है उसके बॉडी के जो बेसल रीजन में कुछ बर्ड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन. एंड यहाँ पे देखिए आप छोटे से बर्ड डेवलप हो रही है. इन द नेक्स्ट डायग्राम द बर्ड जो है वो और थोड़ी सी ग्रो हो गई है. देन फर्दर इन द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे ये हाइड्रा जो है बर्ड को क्या हो जाते हैं टेंटाकल्स फॉर्म हो जाते हैं एट द एंटीरियर यानी हाइपोस्टोम यानी माउथ की तरफ टेंटाकल्स डेवलप हो जाते हैं. नाउ दिस इज द फुल्ली मैच्योर बर्ड. ये बर्ड क्या है अभी मैच्योर हो गया है. नाउ व्हेन दिस बर्ड बिकम्स मैच्योर इट गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा. तो पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से ये जो यंग या फिर मैच्योर बर्ड है वो क्या हो जाता है डिटैच हो जाता है एंड डेवलप और ग्रो और एग्जिस्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल और यंग हाइड्रा वहां से क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है. सो दिस इज द एक्सोजिनस बर्ड. तो ये जो बर्ड फॉर्म हुए यहाँ पे ये कौन से है एक्सोजिनस बर्ड्स है यानी बॉडी के सरफेस पे ये बर्ड्स डेवलप होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सोजिनस बर्ड. कुछ अदर टाइप के भी बर्ड्स डेवलप होते हैं जो कि इनसाइड द बॉडी डेवलप होते हैं एंड द एग्जांपल इज ऑफ दिस सच इन एंडोजिनस बर्ड्स आर कॉल्ड एज जेम्यूल्स. ओके, तो जेम्यूल्स ये भी एक टाइप के बर्ड्स ही है बट दे आर दी डेवलप इनसाइड द बॉडी. तो क्या है ये दीज आर द असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड मास और द एग्रीगेशन ऑफ डॉर्मेंट सेल. तो स्पॉन्जेस में ये होता है पर्टिकुलरली. तो स्पॉन्जेस की बॉडी में जो डॉर्मेंट सेल है कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स. तो ये आर्कियोसाइट्स का जो एग्रीगेशन है वो जमा हो जाते हैं ड्यूरिंग द पर्टिकुलरली अनफेवरेबल कंडीशंस में. तो ये आर्कियोसाइट्स जो होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ये आर्कियोसाइट्स से क्या हो जाते हैं न्यू यंग वंस डेवलप हो सकते हैं. दिस आर्कियोसाइट्स गेट कोटेड बाय अ थिक रेजिस्टेंट लेयर ऑफ सिक्रीशन बाय अमीबोसाइट्स. तो और एक टाइप के सेल से स्पॉन्जेस में दे आर कॉल्ड एज अमीबोसाइट्स. तो ये अमीबोसाइट्स क्या करते हैं दे सिक्रीट अ थिक रेजिस्टेंस लेयर अराउंड द आर्कियोसाइट्स. तो आर्कियोसाइट के अराउंड क्या करते हैं ये अमीबोसाइट्स थिक लेयर जो है वो सिक्रीट करते हैं और कोटिंग करते हैं अराउंड दिस आर्कियोसाइट्स एंड टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशंस. ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशंस से प्रिवेंट या अनफेवरेबल कंडीशंस को में अपने आप को सेव करने के लिए ये अमीबोसाइट्स क्या करते हैं आर्कियोसाइट्स के अराउंड थिक लेयर सिक्रेट करते हैं. ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाते हैं लाइक वाटर और टेम्परेचर अवेलेबल हो जाता है देन एट दैट टाइम दिस स्ट्रक्चर मींस द ग्रुप ऑफ दिस आर्कियोसाइट्स सराउंडेड बाय द रेजिस्टेंट लेयर टुगेदर इट इज कॉल्ड एज अ जेम्यूल्स. उसको टुगेदर क्या कहा जाता है जेम्यूल कहा जाता है. द स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर इनसाइड. देखिए यहाँ पे आर्कियोसाइट्स है देन आउटर ये उसका इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये आउटर मेम्ब्रेन है कोटिंग का. देन वहाँ पे कुछ स्पिक्यूल्स भी है दे आर कॉल्ड एज अ मोनाक्सॉन स्पिक्यूल्स एंड हियर इज द ओपनिंग कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल ओपनिंग. उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यहाँ से ये माइक्रोपाइल ओपनिंग थ्रू ये आर्कियोसाइट्स जो है वो बाहर आते हैं एंड दे डेवलप एज अ न्यू इंडिविजुअल. ओके, सो इस तरह से ये स्पॉन्जिला या स्पॉन्जेस में क्या होता है ये देयर इज अ थ्रू द एंडोजिनस बर्ड्स दैट इज द जेम्यूल्स के थ्रू क्या हो जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. नाउ one another term called as a regeneration which is not involved in asexual reproduction. ये reproduction से related नहीं है but it involves some asexual processes. तो क्या है regeneration? Let us see. It is observed in all the organism. यानी unicellular like bacteria से लेके जो complex organism है लाइक ह्यूमंस, तो इन सभी में ये प्रोसेस होता है रीजनरेशन का. क्या होता है ये प्रोसेस में? इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिजम्स कैन फंडामेंटली रिपेयर. ऑर्गेनिजम्स रिपेयर होता है, रीग्रो होता है और रिस्टोर होता है इट्स लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डैमेज और लॉस्ट पार्ट है वो रिपेयर होता है, रीग्रो होता है या फिर रिस्टोर होता है. So, though it involves the asexual process, अगर regeneration में जो भी processes होते हैं asexual होते हैं, लेकिन it differs
डिस्टिंक्टली फ्रॉम रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से लेकिन ये प्रोसेसेस अलग है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ओनली डैमेज्ड जो या लॉस्ट जो पार्ट है बॉडी का वो रीजनरेट होता है, वो रिफॉर्म होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट कैन रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा का तो एग्जाम्पल हो गया। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ प्लानारिया। इफ प्लानारिया इज वुंडेड, यानी उसको कुछ वुंड है या फिर इंजुरी है, देन इट्स सेल्स बिकम्स एक्टिव, उसके सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं एंड रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट और ऑर्गन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि जो भी लॉस्ट पार्ट है वो क्या हो जाते हैं, रीजनरेट होते हैं। ओके, नाउ ये जो प्लानारिया है यहाँ पे, तो प्लानारिया जो है उसका रिप्रोडक्शन भी होता है बाय असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो डायग्राम है, इट शोज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लानारिया बाय फ्रैगमेंटेशन। इसको ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, बट एग्जैक्टली वो कैसे होता है देखिए। इट्स प्लानारिया में जो एंटीरियर दिस प्लानारिया, इसका ये एंटीरियर रीजन, ये पोस्टेरियर रीजन। तो एंटीरियर रीजन जो है वो पुल हो जाता है ऑन द पोस्टेरियर रीजन। ओके, एंड इसकी वजह से यहाँ पे मिडल रीजन में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, एंड कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मिडल रीजन में ये स्प्लिट हो जाता है, दो पार्ट हो जाते हैं, दो फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं प्लानारिया की बॉडी के। नाउ अब ये दो पार्ट हो गए हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर सेपरेट पार्ट हो गए, तो सेपरेट एंटीरियर रीजन क्या करता है, पोस्टीरियर रीजन को डेवलप करता है, एंड जो पोस्टीरियर रीजन है वो एंटीरियर रीजन उसका डेवलप हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे देखिए ये फ्रैगमेंटेशन हो गया इसकी बॉडी का और दो प्लानारिया फॉर्म हो गए। तो इस तरह से ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इन प्लानारिया। ओके, तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीचे वाला, एंड ऊपर जो है दैट इज द regeneration, in which the lost part or damaged part is regenerated or repaired. Okay, so this is about the different ways of asexual reproduction in different organisms. I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो if you understand, then like, share and subscribe, and thank you for watching.